Welcome dear students, this is Shahid sir who is working as a senior lecturer at Alpine College, Dehradun. Dear students, in this very pandemic we are going to provide online classes, for which I would like to thank the administration of our college and the management of our college, and special thanks to managing director esteemed Bhavna Saini. And she always helps our students who are coming from different parts of our country, and especially who are coming from Jammu and Kashmir. So dear students, today we are going to start the new chapter in discrete mathematics, and we are going to start the graph theory. And I hope that you will understand. If there may arise any problem in you, you can comment below and you can contact me. Thank you very much. Welcome dear students, this is Shahid sir who is working as a senior lecturer at Alpine College, Dehradun. So dear students, now we are going to start this chapter, and the name of the chapter is graph theory, which is a part of discrete mathematics. So dear students, you may already know about discrete mathematics. Discrete mathematics is one of the important branch in mathematics which deals with the study of mathematical structure that are countable, and it is a theoretical subject, dear students, and this graph theory is a part of discrete mathematics. Now, the first question in your mind may arise that, sir, what do you mean by graph? What is the symbol of graph? The symbol of the graph is G, capital G. Okay, the first question in your mind may arise, what is a graph? Dear students, graph is a structure. Okay, fine. अब पता चला कि structure है. अगर ये स्ट्रक्चर है तो दैट मीन्स एक स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर का के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनको पढ़ने के बाद हम उनको सॉल्व कर सकते हैं. सो विच सिंपली मीन्स दैट we can solve any kind of difficult task, any kind of difficult question with the help of this graph theory in simple means. Okay, now the question is, sir, what do you mean by graph? Okay sir, we came to know that is a structure. अगर ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. सर फाइन. सर इस ग्राफ की जो सिंबल है दैट इज कैपिटल जी, हमें ये भी पता है. थैंक यू वेरी मच. ओके, ये ग्राफ को अगर हमने डिफाइन करना है ग्राफ थ्योरी के अंदर, तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्राफ? क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के रिलेटेड या गेट लाइक एग्जाम्स में बात करेंगे, तो 1-2 वेटेज के जो मार्क्स हैं वो ग्राफ थ्योरी के अंदर आते हैं. सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड फॉर एमएससी मैथमेटिक्स एज वेल, एंड फॉर बीएससी आईटी बीसीए स्टूडेंट्स, एमएससी आईटी स्टूडेंट्स. तो ध्यान दीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा. हम पैटर्न में इसको लेके चलेंगे इस सीरीज में. इस चैप्टर को हम पैटर्न में एक सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे जाएंगे. इसमें देखेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो भी करेंगे, जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो भी कंप्लीट करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज ए ग्राफ. पहले ही मैंने बताया ग्राफ क्या है. इट इज अ स्ट्रक्चर. गुड. ग्राफ इज ए स्ट्रक्चर. तो मैं यहां पॉइंट आउट करूंगा इसकी डेफिनेशन. इट्स अ स्ट्रक्चर एज G equal to V comma E. Okay sir, that's fine. G equal to V comma E. Sir, what is this V and what is this E? Sir, G हमें पता चला. It indicates the graph. What is V? V simply means set of vertices. And what is E there? Capital E. That is the set of edges. तो हमें अब पता चला कि ये जो ग्राफ है एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये किसके बने हुए होते हैं? वर्टिसेस और एजेस के बने हुए होते हैं. इट इज सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस. तो यहां मैं लिख सकता हूं बिना आप कंफ्यूज होते हुए, दिस V इज इक्वल टू सेट ऑफ वर्टिसेस एंड दिस कैपिटल E इक्वल टू सेट ऑफ एजेस. आपके जहन में अब क्वेश्चन होगा डियर स्टूडेंट्स कि ये वर्टिसेस क्या है और ये एज क्या है. बिल्कुल 8th स्टैंडर्ड टॉपिक है कि व्हाट डू यू मीन बाय एज एंड व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिसेस. राइट. अगर हम एक लाइन को लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये एक लाइन है हमारे पास और ये दूसरी लाइन है. राइट. तो इसकी डायरेक्शन जो है वो बाद में देखेंगे हम. तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो आप देख रहे हैं दिस इज एन एज, और ये जो देख रहे हैं आप दैट इज एज. यहां से यहां, यहां से यहां, दैट इज एज. और ये वाला पॉइंट जो देख रहे हैं दैट इज
वर्टेक्स। वाओ, क्या बात है। तो ग्राफ के अंदर हमने इन्हीं वर्टेक्स और एजेस के बारे में पढ़ना है, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, जहां जहां दिक्कत होगी वहां वहां हमने उनको परफॉर्म करना है, उनका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करना है। किसके अंदर? ग्राफ थ्योरी के अंदर। तो वर्टिसेस कितने हो सकते हैं? v इक्वल टू, ये कितने हो सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, ये v1 से लेके v1 कामा v2 कामा v3 डैडा डैडा vn नंबर तक हो सकते हैं वर्टिक्स किसी भी ग्राफ के अंदर। एक से लेके डैडा डैडा डैश vn यानी n नंबर ऑफ वर्टिक्स के अंदर हो सकते हैं। एंड देन व्हाट इज दिस e? दिस e इज नंबर सेट ऑफ एजेस। ये कहां से हो सकते हैं? E1 से लेके E2 से लेके E3 से लेके E4 डैडा 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 डैश En यानी n नंबर तक ऑफ एजेस तक हो सकते हैं एक ग्राफ के पास। तो आई होप कि गाइस आपको ये जो अभी इंट्रोडक्शन हम दे रहे हैं ग्राफ थ्योरी पे, आई होप कि यहां पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप जी समझ चुके हैं, इक्वलिटी जो कि मैथमेटिकल ऑपरेटर है, साइन है, और v कामा e, ये जो v है दैट इज सेट ऑफ वर्टिसेस एंड दिस e इज द सेट ऑफ एजेस। आई होप कि ये अभी तक आपको समझ आ चुका है कि ये वर्टेक्स एजेस किनको हम कहते हैं और वर्टेक्स हम किसको कहते हैं। ग्राफ के अंदर सर क्या 10-15 वर्टेक्स हो सकते हैं? द आंसर इज यस। क्या एक ग्राफ के अंदर 15-20 डैश many मोर एजेस हो सकते हैं? द आंसर इज यस। एक से लेके डैश en तक हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स पे। टाइप्स पे बात करेंगे तो दैट मीन्स व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ? देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। द वन इज डायरेक्टेड ग्राफ एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्टेड ग्राफ। अब ये डायरेक्टेड ग्राफ क्या है और इनडायरेक्टेड ग्राफ क्या है, ये समझना हमने बहुत जरूरी है। पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में। देयर आर टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज डायरेक्टेड ग्राफ। नाम से ही पता चलता है, आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड। अनडायरेक्टेड ग्राफ, ओके, ठीक है सर, हमें पता चला देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। द फर्स्ट वन इज डायरेक्टेड ग्राफ एंड द सेकंड वन इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। सर ये डायरेक्टेड ग्राफ हम किस चीज को कहते हैं? पहले हमने ग्राफ समझ लिया सर। ग्राफ जो है दैट इज सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस, इतना हमें पता चला। और एज किस चीज को कहते हैं वो भी हमने पता चला। एडजेसेंट एज या एडजेसेंट वर्टेक्स हम किस चीज को कहते हैं ये भी हमें पता चला। तो ये डियर स्टूडेंट्स मुझे ये बताइए डायरेक्टेड ग्राफ। अब मान के चलिए मैंने जाना है देहरादून से लेके मान के चलिए दिल्ली, तो मेरी दिशा क्या है? दैट इज ओनली फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली। जो नेशनल हाईवे होगा मुझे सीधे जाना है, तो वन वे कहां से? देहरादून टू दिल्ली। और दिल्ली वापस आने के लिए मैं देहरादून डायरेक्ट नहीं आ सकता। मान के चलिए मैं सिटी 1 से लेके C1 से डायरेक्ट मुझे जाना है C2 यानी दिल्ली, ये देहरादून है। तो मेरी डायरेक्शन क्या रहेगी? फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, मीन्स फ्रॉम देहरादून टू दिल्ली। अब मान के चलिए यहां पे दिशा है, तो जब दिशा की बात आ रही है, जब डायरेक्शन की बात आ रही है, तो दैट मीन्स इट्स अ डायरेक्टेड ग्राफ, ओके। और अगर एजेस की डायरेक्शन है तो दैट मीन्स डायरेक्टेड ग्राफ। अगर एजेस की डायरेक्शन नहीं है, जो कि हमने 99% जो है वो हमें अनडायरेक्टेड ग्राफ के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब मान के चलिए मुझे जो है यहां से, अब मुझे दिल्ली से वापस आना है, सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन डायरेक्शन तो खाली देहरादून टू दिल्ली है, दिल्ली से वापस तो नहीं है। आप मान के चलिए, ये नहीं है कि आप नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूं, आप 2 मिनट के लिए मान के चलिए कि आप वापस नहीं आ सकते, रोड नहीं है, रोड बंद हुआ है, तो अब आप कहां से जा सकते हैं? अब डायरेक्शन खत्म हो गई है। आप क्या करेंगे? आप दिल्ली से आप किसी और डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे, फिर किसी और तहसील में चले जाएंगे, फिर विलेजेस में चले जाएंगे, फिर विलेजेस के बाद और विलेजेस, और जब बहुत सारे विलेजेस आप कवर करेंगे उसके बाद आप कहां पहुंचेंगे? देहरादून। तो मतलब कोई डायरेक्शन नहीं रही है आपके भाई। तो दैट मीन्स ये जो इस प्रकार की ग्राफ्स जहां पे हमें मिलेगी, दीज ग्राफ्स आर कॉल्ड अनडायरेक्टेड ग्राफ। ये जो है यहाँ पे मान के चलिए एक पॉइंट है, पॉइंट ए है और पॉइंट 1 है, दिस इज पॉइंट 2, पॉइंट 3,
0.4, ओके। हम यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए और फिर वापस। तो यहां देख सकते हैं दिशा है। तो दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज डायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है, एरो है। एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या है? सिंपल, दिशा को हटाइए, एरो को हटाइए, दैट बिकम्स व्हाट? दैट बिकम्स अनडायरेक्टेड ग्राफ। 1 2 3 4। तो यहां पे कोई दिशा नहीं है। व्हाट इट मीन? दिस मीन दिस इज व्हाट? अनडायरेक्टेड ग्राफ। मान के चलिए ए एच है, बी सी डी, ए एच बी सी और डी। अब रूल क्या है लिखने के लिए? अब मान के चलिए मुझे लिखना है ये वाला एज मैंने लिखना है। तो मैं कहां से कहां गया? फ्रॉम 1 to 2। क्या 2 to 1 वापस आ सकता हूं? नहीं, क्योंकि दिशा मुझे कहां से है? फ्रॉम 1 to 2। तो दैट मीन्स मैं लिखूंगा यहां पे 1, 2। सर क्या मैं 2, 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल नहीं, दिस इज डायरेक्टेड ग्राफ। अब 2, 1 नहीं लिख सकते हैं, ये एप्लीकेबल है, बट 2, 1 एप्लीकेबल नहीं है। अब यहां देख लीजिए अनडायरेक्टेड ग्राफ में एक तो मैं जा सकता हूं 1, 2 यानी 1 से लेके 2 तक, और फिर वापस भी आ सकता हूं यानी 2, 1। या हियर इट इज एप्लीकेबल बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन। डायरेक्शन के चक्कर यहां पे कुछ भी नहीं है। किसमें? अनडायरेक्टेड ग्राफ में। और डायरेक्टेड ग्राफ में क्या है? डायरेक्शन के चक्कर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ओके, तो अब हम बात करेंगे। तो जब बात करेंगे डायरेक्टेड ग्राफ की, तो क्या लिखेंगे हम? सेट ऑफ ईच एज इज ऑर्डर्ड पेयर। सेट ऑफ ईच एज इज ऑर्डर्ड पेयर मतलब 1, 2 लिखेंगे, 2, 1 नहीं लिख सकते। ओके, अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? ईच एज इज सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स। यानी हम लिख सकते हैं 1, 2 भी और 2, 1 भी लिख सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्शन। आई होप दैट यू गाइस गॉट इट, कि जब डायरेक्शन की बात होगी, दिशा की बात होगी, देन यू आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्टेड ग्राफ। एंड जब दिशा की बात नहीं होगी, देन यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? अनडायरेक्टेड ग्राफ। नव यहां पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा डियर स्टूडेंट्स। मान के चलिए एक हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है। क्या 1, 3 एक एडजेसेंट वर्टेक्स है या नहीं? पास करके मुझे बताइए। बिल्कुल नहीं है, सही कह रही हैं आप। This 1, 3 is not adjacent vertex because they are not joining one another. Okay, वो अलग बात है, हम इसको ट्रेवर्स कर सकते हैं, राइट? दैट इज अनदर थिंग, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि दीज आर रीचेबल। दिस 3 इज रीचेबल है, यहां से यहां ये रीचेबल है, वो अलग बात है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि क्या 1, 3 जो है क्या ये एडजेसेंट वर्टेक्सेस है? द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज सर नो। नाउ अब हम बात करेंगे, आई होप कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, व्हाट? द डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ किस चीज को कहते हैं और अनडायरेक्टेड ग्राफ किस चीज को कहते हैं? आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं एक एग्जांपल से भी यहां आपको समझा सकता हूं। दिस इज पॉइंट 1 एंड दिस इज पॉइंट बी। अगर 1 से लेके 2 तक जाना है, 2 से लेके 1 तक भी आ सकते हैं। दिस इज व्हाट? अनडायरेक्टेड है भी। तो अगर मैं यहां पे दिशा यूज करूंगा 2 to 1, तो अब आप कहां जा सकते हैं? 2 to 1। आप खाली ये जो यहां पे लिख सकते हैं दैट इज 2 to 2, 1 और 1, 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि दिशा कहां की ओर है? 1 की ओर है। मतलब आप 2 से आ रहे हैं कहां? 1 तक, लेकिन 1 से अब आप वापस नहीं जा सकते। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेल्फ लूप एंड पैरेलल। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं एक तो वो आगे हम पढ़ेंगे सिंपल ग्राफ के बारे में और मल्टीपल ग्राफ के बारे में, राइट? तो मल्टीपल ग्राफ्स में भी हम देख लेंगे कौन कौन सी चीजें हैं, और सिंपल ग्राफ जो कि आपको मैक्सिमम कवर करना है, नियरली 99% आपको सिंपल ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है, और अनडायरेक्टेड ग्राफ्स के बारे में जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो सॉल्व करने होंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे सेल्फ लूप पे और पैरेलल एज पे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको इस ग्राफ थ्योरी में मिलेंगे, जहां पे आपको बात करनी होगी सेल्फ लूप के बारे में और पैरेलल एज के बारे में। तो सेल्फ लूप पहले देखते हैं। एज हैविंग वर्टेक्स वी हैव as it ends vertices, और parallel edge more than one edge is associated into given pair of vertex। डेफिनेशन से नहीं समझ में आया है ना? ठीक है, एक यहां पे आप ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स। मान के चलिए अगर हमारे पास एक ग्राफ है, तो उस ग्राफ के अंदर
1.2 ये कनेक्टेड है आपस में, 3 और देन 4। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, अगर हमने इस प्रकार का कुछ देखा जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है और इसी पॉइंट पे एंड होता है, वी कॉल दिस सेल्फ लूप। आर यू गेटिंग मी? क्या कहते हैं? अब कुछ लोग इसमें मल्टीपल ग्राफ्स में लेते हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं, इसको डिफाइन नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगर इसी पॉइंट पे स्टार्ट हो रहा है और इसी पॉइंट पे खत्म हो रहा है, देन वी कॉल दैट लूप व्हाट? सेल्फ लूप। और पैरेलल एज कब कहेंगे? पैरेलल एज यहां देख लीजिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूंगा यहां पे वर्टेक्स की, जब मैं और एक वर्टेक्स यहां से बना लूं तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? पैरेलल एज। इसको हम पैरेलल एज कह सकते हैं। क्या सर इस ओर बना सकते हैं? बिल्कुल इस ओर भी बना सकते हैं, दिस कॉल्ड पैरेलल एज। लेकिन अब चक्कर यहां पे ये है कि आप 2,3 लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? अगर आपको यहाँ पे लिखना होगा कि ट्रेवर्स कहां से करेंगे, आप लिख सकते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ में 2,3 या 3,1, सॉरी 3,2। यहां लिख सकते हैं 2,3, या लिख सकते हैं 3,2 बिकॉज इट इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। लेकिन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर इस प्रकार की ग्राफ कहीं पे आपको मिलेगी, देन दिस ग्राफ इज नोन एज व्हाट? पैरेलल एज। क्योंकि इसके पास एक एज यहां से है, दूसरा एक एज यहां से है। अगर एक हटा देंगे, सर अभी भी रहा ये पैरेलल एज? जी अभी भी रहा, क्योंकि अभी भी इस साइड आप देख सकते हैं एक जो एज है वो यहां से क्रिएट हो रहा है, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर हम इसको रिमूव करेंगे, अगर इसको रिमूव करेंगे ऐसे दोनों को, तो ये क्या बन जाती है? और इसको भी रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगी? दिस बिकम्स व्हाट? सिंपल ग्राफ, जिसके बारे में हमने आगे पढ़ना है। क्या बन गई अब? सिंपल ग्राफ। लेकिन अभी हमने उसके बारे में डिस्कस नहीं करनी है, तो मैं किन चीजों के बारे में भी बता रहा हूं? सेल्फ लूप और पैरेलल एज के बारे में अभी आपको समझा रहा हूं। ओके, आई होप कि आप अभी समझ चुके होंगे कि सेल्फ लूप क्या होती है और पैरेलल एज, व्हाट डू यू मीन बाय पैरेलल एज एंड व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ लूप। आई होप दैट यू गाइज अंडरस्टैंड। सो आगे हम इस पे और डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये कब अलाउड है ग्राफ थ्योरी के अंदर, जरा मुझे बताइए। अगर मैं एक साइड में लिखूंगा सेल्फ लूप, दूसरे साइड में पैरेलल एज। सेल्फ लूप, to make you better understand, I am going to show an example that is self loop and parallel edge. Okay, first of all let me tell you about this graph. ग्राफ के अंदर क्या होती है? क्या सेल्फ एज होती है? बिल्कुल। क्या अगर किसी चीज के अंदर सेल्फ लूप है, क्या उसको हम ग्राफ कह सकते हैं? द आंसर इज यस। अगर पैरेलल एज होंगे, दोनों होंगे मान के चलिए, तो ग्राफ है? द आंसर इज जी हां, बिल्कुल ग्राफ है। अभी आप देख सकते हैं पैरेलल एज भी है यहां पे और सेल्फ लूप भी है, certainly it is a graph. Are you getting me? That is another thing, is a directed or undirected graph. Okay, multiple graph. अब यहां पे कुछ लोगों की दिक्कत होती है, सर मल्टीपल ग्राफ जो है, कुछ लोग मानते हैं कि जो सेल्फ लूप है वो मल्टीपल ग्राफ है, कुछ लोग नहीं मानते हैं। सर अब क्या करेंगे इसके साथ? ये जो सेल्फ लूप है ये मल्टीपल ग्राफ नहीं है, मल्टी ग्राफ में सेल्फ लूप अलाउड नहीं है। ओके, क्या पैरेलल एज अलाउड है? द आंसर इज यस, पैरेलल अलाउड है। नाउ अनदर सीडोग्राफ। सीडोग्राफ में बताइए सेल्फ लूप अलाउड है? सेल्फ लूप सीडोग्राफ में अलाउड है, टिक मारिए। क्या पैरेलल एज अलाउड है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी ये मुझे बताइए, इस एग्जाम्पल से आप मुझे आंसर दीजिए, आप मुझे उत्तर दीजिए डियर स्टूडेंट्स। कैन आई से दैट दिस फिगर, दिस ग्राफ इज अ सीडोग्राफ? द आंसर इज सर नो। व्हाई? सेल्फ लूप तो है सर, आपने भी टिक दिया, बिल्कुल दिया, सेल्फ लूप तो है इसमें, लेकिन और एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ये पैरेलल एज नहीं होना चाहिए। यहां पे पैरेलल एज हैं, तो दैट मीन्स ये सीडोग्राफ नहीं है। क्या ये वाली ग्राफ है? बिल्कुल है, क्योंकि सेल्फ लूप भी अलाउड है, पैरेलल एज भी अलाउड है। क्या ये मल्टीपल ग्राफ है? नहीं। क्यों? क्योंकि सेल्फ लूप इसमें अलाउड नहीं है। सेल्फ लूप को हटाएंगे, देन इट बिकम्स व्हाट? मल्टीपल ग्राफ।
Now the another one is what? Simple graph. सिंपल ग्राफ तो मैंने खैर अभी बता दिया था. सरल सी बात है डियर स्टूडेंट्स. सिंपल ग्राफ में मैंने बताया कोई चीज नहीं होनी चाहिए, ना सेल्फ लूप होना चाहिए, ना इसमें कोई पैरेलल एज होना चाहिए. When we are going to remove both the self loop and the parallel edge, then the graph is known as simple graph. तो बात क्या है फिर? तो सीधी सरल सी बात है. तो इसमें सेल्फ लूप भी अलाउड नहीं है, ना इसमें पैरेलल एज अलाउड है. ओके, आगे हम डिस्कस करेंगे डिग्रीज पे, और फिर उसके आधार पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, और कब हम पॉजिटिव लेंगे, यानी यू कब हम पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये आगे हम डिस्कस डिग्रीज में बात करेंगे. जब लाइन जो है ग्राफ की जो डायरेक्शन है, अगर इफ दीज डायरेक्शंस आर इनवर्ड्स, अंदर की ओर आ रहे हैं, देन वी कॉल दैट व्हाट, that the sign which we are taking as positive. If they are going away from graph, if they are going away from that very point, मान के चले अगर ये एक पॉइंट है, अगर अवे की ओर डायरेक्शन है, देन वी आर टेकिंग दैट नेगेटिव. अगर इनवर्ड्स इसकी डायरेक्शन है किसी भी लाइन की, किसी भी एज का, तो देन वी आर काउंटिंग दैट यू पॉजिटिव. ओके, तो अभी तक हमने बात की थी ग्राफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पे, और फिर ग्राफ थ्योरी पे, और फिर मैंने ग्राफ समझाया था कि डेफिनेशन ऑफ ग्राफ क्या होती है, और उसके बाद मैंने समझाया आपको दिस द टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, एंड देन उसमें थोड़े एग्जांपल्स हमने देखे हैं किस चीज को हम कैसे हम इसको काउंट कर सकते हैं कि कौन सी ग्राफ दिशा पे डिपेंड कर रही है, कौन सी नहीं. और उसके बाद मैंने अभी बताया कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, दैट विल बी द डिग्री के बारे में हम बात करेंगे. आई होप दैट स्टूडेंट्स यू गॉट इट. द मोस्ट ऑफ the graphs you need to study in this very chapter, and these graphs are undirected graphs and these graphs are simple graphs, जो भी हम क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करके करेंगे, and that will be based on what? Simple graph, the maximum more than 99%. Thank you very much. Have a good time.